Good morning, students. In this video, we will discuss about genetic disorders. So, genetic disorders mainly grouped into two categories: Mendelian disorders and chromosomal disorders. So, first we will discuss about Mendelian disorders. These disorders are mainly determined by alteration or mutation in the single gene. Means when we see any mutation or change in case of single gene. Again, Mendelian disorders mainly obey the principles of Mendelian inheritance, जिसमें कि हम बात करते हैं transmission of characters from one generation to another. Then Mendelian disorders, these are mainly predict in the family with the help of pedigree analysis, जो कि हम अपने last assignment में cover कर चुके हैं topic. So examples of Mendelian disorders are hemophilia, color blindness, cystic fibrosis. Hemophilia means it is a sex-linked recessive trait, recessive disorder. Color blindness means इस केस में क्या होता है, there is a reduced ability to distinguish between certain color, mainly red and green में means कि affected person distinguish नहीं कर पाता है. Cystic fibrosis के केस में again it is a inherited disorders that mainly damages lungs and digestive system. Then sickle cell anemia, phenylketonuria, thalassemia. Thalassemia is mainly again inherited blood disorders. इस केस में that is there is a it mainly causes less hemoglobin than normal and may cause anemia. So Mendelian disorders may be dominant or recessive. Again, predict from the pedigree analysis. Trait may be linked to sex chromosomes. For example, hemophilia. Hemophilia that is X-linked recessive trait that may be transmitted from carrier female to male progeny. Hemophilia, it is a sex-linked recessive disease. The defective individual continuously bleed to a simple cut means कि the person who is affected from hemophilia, उस केस में क्या होता है, अगर कोई छोटा सा कट भी उसे लगता है तो बहुत टाइम तक मीन्स कॉन्टिन्यूटी में वहां से ब्लीडिंग होती है. The gene for hemophilia is located on X chromosome. जो जीन है मेनली इस डिसऑर्डर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है एक्स क्रोमोसोम पर पाई गई, इसलिए इसे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज कहा गया. In this disease, a single protein that is a part of cascade of proteins that involved in the clotting of protein blood is affected. Means कि हेमोफीलिया के केस में क्या होता है बच्चों, जो protein that is responsible for the blood clotting that is affected. Clear? The disease is transmitted from unaffected carrier female to some of the male progeny. Means कि जो disease है transmit होती है unaffected, in this case females are carriers. ठीक है, और वो क्या करेंगी, डिजीज को कैरी करेंगी एंड देन ट्रांसमिट द डिजीज टू द मेल प्रोजनी. हेट्रोजाइगस फीमेल मींस की जो हेट्रोजाइगस कंडीशन जिसमें कि फीमेल डिजीज को कैरी करेगी एंड दैट मे ट्रांसमिट द डिजीज टू सन्स. फीमेल विद मींस की बहुत कम चांसेस होते हैं कि फीमेल भी हेमोफिलिक हो. मेनली मेल्स आर हेमोफिलिक. फीमेल किस केस में हेमोफिलिक होगी, if mother should be carrier and father hemophilic. means if अगर mother carrier होगी और father hemophilic, उस केस में फीमेल जो है मीन्स की नेक्स्ट जनरेशन में जो फीमेल होगी दैट इज hemophilic. अब देखो जैसे यहाँ पर क्रॉस की हेल्प से दिखाया गया है. if father मीन्स की मेल विद hemophiliia and female that is unaffected. सो इस केस में जो नेक्स्ट जनरेशन में जो रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इन दैट केस नो सन्स विल हैव हीमोफीलिया. मीन्स की जो मेल होंगे नेक्स्ट जनरेशन में हीमोफीलिया में देखने को नहीं मिलेगा एंड ऑल डॉटर्स विल बी कैरियर. और जो नेक्स्ट जनरेशन में जो फीमेल्स होंगी दोज आर कैरियर्स. एंड दीज क्रॉसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हीं से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आते हैं. सो इन नेक्स्ट क्रॉस अब यहाँ पर क्या है दैट इज
मेल इज अनअफेक्टेड एंड फीमेल इज कैरियर। सो इस केस में क्या होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन में पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगी, 25% मेल विदाउट हीमोफीलिया, 25% females again are not hemophilic, 25% males with hemophilia and 25% females are carriers. So ये रिजल्ट किस केस में देखने को मिलते हैं, अगर मेल अनअफेक्टेड होगा एंड फीमेल विद दैट इज फीमेल इज कैरियर. Then again there is one more clause. In this case, male is hemophilic and female is carrier. So इस केस में जो नेक्स्ट जनरेशन में रिजल्ट देखने को मिलेंगे, in this case 25% males are मीन्स की विदाउट हीमोफीलिया एंड अब देखो इस केस में हमें जो 25% फीमेल्स है वो हीमोफिलिक देखने को मिल रही है. अब यहाँ कैरियर नहीं है, मीन्स की दोज आर अफेक्टेड. अब इस केस में क्या था, जो फर्स्ट जनरेशन में मीन्स की जो मेल था दैट इज हीमोफिलिक एंड फीमेल्स आर कैरियर. तो मैंने जैसे आपको पहले भी एक्सप्लेन करके बताया कि इफ देयर इज अ क्रॉस बिटवीन दीज टू पेरेंट्स देन उस केस में जो फीमेल्स है वो हीमोफिलिक देखने को मिलती हैं. देन अगेन 25% मेल्स आर again with hemophilia and 25% females are carriers. क्लियर. तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि आपको ये गिवन होगा कि दैट इज आइदर मेल इज हीमोफिलिक या फीमेल कैरियर्स है, तो आपको ये क्रॉसेस बनाने आने चाहिए. सो नेक्स्ट वन इज द सिकल सेल एनीमिया. इन दिस केस अब मेनली सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, it is a autosome linked recessive trait. No, it is a not a sex linked trait नहीं है ये. This is transmitted from parents. Both partners are carriers, heterozygous, controlled by a single pair of allele HBA and HBS. Clear? HBA and HBS means कि ये आपका सिकल सेल एंड नॉर्मल हेमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. homozygous individuals means ki that is HBS they become diseased. Then heterozygous individuals unaffected but those are carriers. Defect is due to substitution of glutamic acid. अब मेनली जो सिकल सेल एनीमिया वो मेनली होता है क्या, क्यों होता है, मीन्स की देयर इज द सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन, जहां पर एक बीटा ग्लोबिन चेन होती है. बीटा ग्लोबिन चेन किसे कहा गया है, दैट इज अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द हीमोग्लोबिन, जो कि अल्फा ग्लोबिन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करती है. तो बीटा ग्लोबिन चेन में क्या होता है, जहां पर ग्लूटामिक एसिड होता है उसके सब्सटीट्यूशन में क्या आ जाता है, वेलिन एट 6th पोजीशन. सो ड्यू टू सब्सटीट्यूशन ऑफ सिंगल बेस एट 6th कोडॉन, कोडॉन मीन्स जैसे ट्रिपलेट्स में होता है, ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. दैट इज कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम GAG टू GUG. जैसे कि आपका पीछे दिखाया गया था कि जो आपका मीन्स की आप जो ग्लूटामिक एसिड था वहां पर बीटा ग्लोबिन चेन में सब्सटीट्यूशन देखने को मिली है एंड वहां क्या आ गया, दैट इज वेलिन. सो hemoglobin become mutant means कि उसमें चेंज हो गया. so that causing change in shape of RBC from biconcave to sickle like structure. तो जो RBCs होते हैं नॉर्मली मेमेलियन RBCs are biconcave in shape. so इस केस में RBCs की शेप ऐसी नहीं रहती है and they become changed to sickle like structure. देन अब यहाँ पर आपका बताया गया है, अब जैसे आप सेंटर में देखिए, फादर विद सिकल सेल एनीमिया, मदर अगेन विद सिकल सेल एनीमिया. सो अगर फर्स्ट जनरेशन में इन दो पेरेंट्स मीन्स की पेरेंट्स आर बोथ विद सिकल सेल ट्रेट, सो जो प्रोजनी देखने को मिलेगी दैट इज अगेन ऑल हैविंग सिकल सेल ट्रेट. ठीक है. और आप साइड्स में जैसे इफ फादर विद सिकल सेल एनीमिया एंड मदर इज नॉर्मल, देन
children is with trait, T represent trait and N represent normal. Then again, if father with sickle cell anemia and mother is with trait, and then again 50% in next generation 50% progeny is with sickle cell and 50% progeny is with trait. ठीक है, तो यहाँ पर मीन्स कि आपकी क्रोसिस के थ्रू बताया गया है कि अगर पेरेंट्स में ये ट्रेट होगा तो नेक्स्ट प्रोजनी में क्या देखने को मिलेगा. So next one is the phenylketonuria, inborn error of metabolism inherited as, again it is a autosomal recessive trait. ये जो हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कर रहे हैं तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि which traits are autosomal trait, which one are the sex linked traits. So in this case, affected individuals lack enzyme that convert amino acid phenylalanine to tyrosine. So इसमें जो इंडिविजुअल्स फिनाइल कीटोन्यूरिया से अफेक्टेड होते हैं उन केसेस में जो एंजाइम फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, मीन्स कि उन पर्सन में ये एंजाइम नहीं होता है. सो इस केस में क्या होगा, देयर इज नो कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलानिन टू द टायरोसिन. सो phenylalanine gas start to accumulates and convert to phenyl pyruvic acid and other derivatives. मीन्स कि फिनाइल एलानिन अब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो वो धीरे धीरे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा एंड देन फिनाइल पायरुविक एसिड एंड सम अदर डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाएगा. सो it causes accumulation in brain and that results into mental retardation and then excreted in urine, poor absorption by kidney. ठीक है, so these are the some symptoms in those persons who become affected with phenylketonuria. Again, it is a inherited disorder. Then second group of the genetic disorder is the chromosomal disorder, caused due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosome. अब यहाँ मेनली क्या होता है, दैट इज मीन्स की एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम. सो क्या क्या कारण है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के? फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड, सेल डिवीजन साइकिल, gain or loss of chromosome, that is aneuploidy. So aneuploidy means that is abnormal number of chromosome. So means कि जैसे normally cell division में क्या होता है, there is segregation of chromatids. So in this case means कि segregation नहीं हुई cell division के time, so there is a possibility of gain or loss of chromosome. means कि chromosome number जो abnormal देखने को मिलता है. So इसमें examples आएंगे Down syndrome. डाउन सिंड्रोम के केस में देयर इज अ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21. उस कंडीशन को हम ट्राइसोमी कहेंगे. टर्नर सिंड्रोम, लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इन केस ऑफ फीमेल्स, इस कंडीशन को हम मोनोसोमी कहेंगे. देन फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज, इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम. और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की, दैट इज पॉलीप्लॉइडी. पॉलीप्लॉइडी मीन्स दैट इज हैविंग मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. means ki during cytokinesis division of the cytoplasm, clear, so that is वो proper नहीं हुई, so that may causes having more than 2 set of chromosome and it mainly seen in case of plants. Down syndrome, presence of an additional copy of chromosome number 21. so इस condition को हम trisomy कहेंगे because trisomy क्यों कहा गया है, there are मीन्स की एडिशनल कॉपी है क्रोमोसोम नंबर 21 की, बिकॉज क्रोमोसोम मेनली पेयर में होते हैं. सो इसलिए ट्राइसोमी कहा गया इस कंडीशन को, मेनली डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डॉन्स 1866 में, इसलिए उसी के नेम पर इस सिंड्रोम को नेम दिया गया. एंड द सिम्टम्स मीन्स की जो डॉन सिंड्रोम से सफर्ड होते हैं उनमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलती हैं, शॉर्ट स्टेचर्स, हाइट ज़्यादा नहीं होगी, स्मॉल राउंड हेड, फरो टंग. टंग मीन्स की जो अपर सरफेस होगा टंग का वो जैसा फरोफिशर्स टाइप उसमें देखने को मिलेंगे. पार्शली ओपन माउथ, ब्रॉड पाम विद पाम क्रीज लाइंस जैसी देखने को मिलेंगी पाम में. फिजिकल साइकोमोटर एंड अगेन दैट इज मेंटल रिटार्डेशन भी इसका एक सिम्टम है. जैसे कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हो, इस फिगर में आप देख सकते हो
कि किस किस तरह के सिम्टम जो हैं वो अफेक्टेड इंडिविजुअल में देखने को मिलती हैं। Second one is the Klinefelter syndrome, presence of an additional copy of X chromosome. So इस केस में क्या होता है, जो X क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो कैरियोटाइप दैट इज टोटल हम बात करते हैं 46 की क्रोमोसोम की, तो यहाँ के होंगे 47। क्लियर, बिकॉज देर इज अ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम, सो कंडीशन होगी XXY। सो सिम्टम में आ गया आपका ओवरऑल मेस्कुलाइन डेवलपमेंट अलोंग विद फेमाइन मेस्कुलाइन डेवलपमेंट, मींस दैट इज सम मेल लाइक कैरेक्टर्स, development of breast that is gynecomastia, persons become sterile, that these are the symptoms of the Klinefelter syndrome. And then last one is the Turner syndrome. अब इस केस में क्या होगा, absence of one of X chromosome. अब ये जो कंडीशन है दैट इज मोनोजोमी, बिकॉज अगर हम बात करें टोटल 46 क्रोमोजोम में, तो यहाँ होंगे आपके 45 एंड द कंडीशन इज XO, O रिप्रेजेंट एब्सेंस। So symptoms are, in this case, females are sterile, ovaries are rudimentary. Rudimentary means fully developed नहीं होती हैं, and there is a lack of secondary sexual character. जो secondary sexual characters है वो भी females में देखने को नहीं मिलते हैं. So this is all about chromosomal disorders. So बच्चों ये था आपका लेसन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो इस वीडियो में हमने इस लेसन के लास्ट जो कुछ टॉपिक रहते थे वो हमने डिस्कस करे। सो नेक्स्ट असाइनमेंट में हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स का नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।